सोहिला राग गौड़ी दीप की महला पहला। तुम गावो मेरे निरपाव का सोहिला, हाँ वादी जित सोहिले सदा सुख होए रहाओ। जयकार कीरत आखिए आखिए करते कहोए विचार। जयकार कीरत आखिए आखिए करते कहोए विचारो, करते कहोए विचारो। जयकार कीरत आखिए आखिए करते कहोए विचारो, करते कहोए विचारो। तितकार गावो सोहिला सोहिला, शिव रे ओ सिरजनहारो, शिव रे ओ सिरजनहारो। तुम गावो मेरे निरपाव का सोहेला, हो वारी जित सो हो वारी जित सोहिले सदा सुख हो, सदा सुख होए। जयकार कीरत आखिए आखिए करते कहोए विचारो, करते कहोए विचार। तुम गावो मेरे निरपाव का सोहेला, हो वारी सोहिले सदा सुख होए, सदा सुख होए। नित नित जियड़े
समालियन देखेगा देवण हारो। नित नित जीड़े समालियन देखेगा देवण तेरे दान कीमत ना पवै तिस दाते कवण शुमार, तिस दाते कवण शुमार। तुम गावो मेरे निरपौ का सोहेला हो वारी, सोहिले सदा सुख होए, सदा सुख होए। संबत साहा लिखिया मिलकर पाओ तेन, संबत साहा लिखिया मिलकर पाओ तेन। देहो सज्जन असी सड़ियाँ जो होवे साहिब स्यों मेले, जो होवे साहिब स्यों मेले। तुम गावो मेरे निरपौ का सोहेला हो वारी, जित सोहिले सदा सुख होए, सदा सुख होए। घर घर एहो पाहो चार, घर घर एहो पाहो चार। सदड़े नित पवन सदड़े नित पवन। सदन हारा सिमरिया सिमरिया, नानक से दे आवन, नानक से दे आवन। तुम गावो मेरे निरपौ का सोहेला हो वारी, जित सोहिले सदा सुख होए, सदा सुख होए, सदा सुख होए। जेकर ये बाणी सोयला
ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰੱਬ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਬੀਇੰਗ ਇਜ਼ ਐਲੀਜੀਬਲ ਟੂ ਹੈਵ ਦਿਸ ਵਿਆਹ। ਹਰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜੀਵ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸੋਹਿਲਾ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰੱਬ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਬੀਇੰਗ ਇਜ਼ ਐਲੀਜੀਬਲ ਟੂ ਹੈਵ ਦਿਸ ਵਿਆਹ। ਮੈਂ ਇਤਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਉਂ ਆਖੇ ਨੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਦਰਦ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਟੀਵੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਏਟਰ ਨੂੰ, ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ, ਮਿਡਲਮੈਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀਏ। ਇਸ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਰਦ ਭਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸੋਹਿਲੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਗਏ, ਐ ਮਨੁੱਖ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਮਤ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਈਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਅੱਜ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਦੀ ਜਾਂ ਜੀਨਸ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਇਹ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਜੈਨੀ, ਬੋਧੀ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਯਹੂਦੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ। ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਧੜਾ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਭੈੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਸੋਹਿਲਾ ਇਤਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਕਾਸ਼ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ 'ਚ ਵਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸਾਂਝ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਨਾਨਕ ਸੇ ਦੇ ਆਵਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੈਨੇ ਸਮਝ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੜ੍ਹਦੇ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੀਜ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਾਸਤਿਕ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਜੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾ ਵੀ ਦੇਵੇ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, किसी थां ते किसी कार ते बह के सेरा बन के नहीं जाना, कोई गोटे किनारे वाली चुन्नी करके किसी दूल्हे को नहीं जाना, कोई ट्रैवल नहीं करना पैना। डिस्टेंस इज टू लॉन्ग बट दिस डिस्टेंस हैज यूनिट विच इज इन माइल्स एंड माइल्स, इनफिनिट माइल्स। पर ए माइल्स की दूरी पता कितनी है? 0। ये दूरी बिल्कुल भी नहीं है। अदरवाइज ये दूरी जे साढ़े मुताबिक बना लीए तो ये दूरी बहुत ज़्यादा है। गलिए चिक्कड़ दूर कर नाल प्यारे ने चला तो भिज्या कंबली, राह तो टुटा नहीं, दूरी बहुत हो जाती। पर जेकर अज ये सानू समझ आ जाए तो ये दूरी बिल्कुल नहीं है, ये डिस्टेंस 0 है। ना ये माइल्स ने, ना ये किलोमीटर ने, ना ये ईवन फ्रैक्शन ऑफ इंच है।
बिल्कुल कि अंदर चला जा, अपने अंदर। जे अपने अंदर चला गया ना, घर ही में भरपूर तेनों समझ आ जाएगा, घर ही में अमृत भरपूर है। एक बारी असी विसाखी ते शब्द गायन किया सी लुधियाने, जिसकी कैसेट बनी है अमृत की है, 2 वॉल्यूम ने। उहदे विच असी शब्द गायन किया सी, मन रे थिर रहो मेरे मन, टिक जा, मत कत जाई जी, किधरे ना जा। तेनों किसी भी तीरथ से जाने की लोड़ नहीं है, अपने घरों बाहर निकल के किधरे जाने की लोड़ नहीं है। थिर रहो मत कत जाई जियो, बाहर ढूंढत बहुत दुख पावे, दुबदा ये फल ना ही जियो। तेरे घर अंदर है, बस तू अंदर ट्रैवल जे कर गया ना, तू एक मिकता दी अवस्था मान सकेगा। इस एक मिकता दी अवस्था नूं असी मान क्यों नहीं सके? भुलेखा नंबर 1, सानू अज तक ये समझाया गया, जदों मनुख मर जाता है, मरण तो बाद ये धरती, ये सारा जीवन इहदा पेका घर है, ते मरण तो बाद ये सौहरे घर जाएगा, ते सौहरे घर विच इहनूं रब रूपी पति मिलेगा। हुण जे 70 या 80 90 साल बाद मरांगे, जे तां विआह होना है रब जी नाल, तां तक ते फिर मनुख आप ही बोल पैंदा जी, ये जग मिठा अगला किन डिठा। उहनूं हुणे चाह नहीं है। जिहड़ी बच्ची या जिहड़ा बच्चा 7-8 साल दा अपने घर विच खिडौणियां नाल खेड रहा है, उहनूं हुणे चाह नहीं है कि मेरा 20-22-25 साल बाद विआह होवेगा। ही और शी डजंट नो, उन्होंने नहीं पता, ना उहदे मन अंदर उमंग है ना चाह है। पर इस भुलेखे दे कारण असी रब जी दे नाल अपना आनंद कारज कराने वास्ते, रब जी दे नाल अपना ये मेल कराने वास्ते, देव सज्जन असीसड़ियाँ जो होवे साहिब से मेल बारे उद्यम कर ही नहीं सके, क्योंकि असी उस एंगल तो सोचा नहीं। आओ अज इस शब्द के बारे सोच समझते हैं। इस बाणी की बनतर नूं पहला समझ लीए। ये बाणी की बनतर का नाम कीर्तन सोहला नहीं है, इसका नाम असी बोली जाते हैं कीर्तन सोहला। इसका गुरबाणी मुताबक, अकाल तख्त की रहत मुरादिया मुताबक, पंथक सिस्टम मुताबक, गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी के मुताबक इसका नाम सोहला है। कीर्तन सोहला इसका नाम नहीं है। इस सोहला बाणी दे विच जिहड़े शब्द लए गए ने, उन्हां शब्दां बारे आओ असी समझते हाँ। इहदे विच 5 शब्द लए गए ने। पहले 3 शब्द गुरु नानक पातशाह दे ने। महला पहला जयकार कीरत, फिर 6 कर 6 गुर 6 उपदेश, अते फिर गगन में थाल, 3 शब्द। चौथा काम करो नगर पो भरिया, महला चौथा। ते 5वां गुरु अर्जन पातशाह दा करो बिनंती सुनो मेरे मीता। ये 5 दे 5 शब्द जदों मैं गुरु ग्रंथ साहिब विच देखिया, ते गुरु ग्रंथ साहिब विच 2 वारी आए ने। असी सोहला बाणी नूं जदों गुरु ग्रंथ साहिब विच पढ़दे हां ते 12 अते 13 नंबर पन्ने ते 5 शब्द ने सोहला हैडिंग दे हेठां। इस तो इलावा जिहड़े पहले 3 शब्द ने, जयकार कीरत, 6 कर 6 गुर अते गगन में थाल, ये अपने अपने राग दे सिरलेख हेठां उस टॉपिक विच भी हन। सो ईच शब्द इज रिपीटेड ट्वाइस इन गुरु ग्रंथ साहिब। एक अपने सिरलेख दे टॉपिक लड़ीवार हेठां, जे जयकार कीरत है गुरु ग्रंथ साहिब 12 नंबर पन्ने ते भी है, 157 नंबर पन्ने ते भी है, तुसी घर जाके बोलना। पर जे अखंड पाठ हो रहा होए ना, तां नहीं देख सकते। यू कैन नॉट सी दैट, यू डोंट हैव टाइम। फिर तुसी बड़े बिजी हो, फिर 48 घंटे भोग पाना। पर जे हुण घर जाना, खोल के सिर्फ इंज दे 157 ते भी जयकार कीरत लिखा है, उत्थे लिखा है राग गौड़ी दीप की महला पहला, इत्थे भी लिखा है। सो जदों गौड़ी राग आया है, इहदा उच्चारण भी असीं कर दिंदे हां, राग गौड़ी दीप की महला पहला। दीप की राग नहीं है, दीप की गौड़ी दी एक ब्रांच है। राग गौड़ी दीप की किदा शब्द है? महला पहला, नानक पातशाह दा। इस तो बाद दूजा 6 कर 6 गुर, वो आसा महला पहला च है।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਰੀ ਟੇਪ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਟਲੀਸਟ 1 ਸਾਲ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਟਿਊਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ। ਕਿਉਂ? ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਜਦੋਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੋਹਿਲਾ ਕੌਣ ਸੁਣਾਏ। ਮਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੋਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਮਾਵਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਹਿਲਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੋਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਂ ਨੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਰੀ ਗਾਇਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਜੇ ਰਾਗ ਬਦਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਬੱਚਾ ਸੁਣਦਾ ਸੁਣਦਾ ਉਹਦੀ ਟਿਊਨ ਚੰਚਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੂਦਿੰਗ ਲੱਗੇ, ਨੀਂਦਰ ਆਵੇ। ਲੋਰੀ ਵਾਹ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਟਿਊਨ ਬਣਾ ਕੇ। ਉਸ ਕੈਸੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਸਾ ਰਾਗ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬੰਦਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਸੋਹਿਲਾ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਰਾਤੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ 6 ਘਰ 6 ਗੁਰ 6 ਉਪਦੇਸ਼। ਜੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਸਿਰਫ ਸਵੇਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸੋਦਰ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸੋਹਿਲੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸਮਝ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪੈਂਦੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਪੰਨੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੇ 15-20 ਪੰਨੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹੜਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਕਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ, ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਰਥ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ। ਟੌਪਿਕ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਸੋਹਿਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸੋਹਿਲੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖਿਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੋਦਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਦਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਨਹਾਉਂਦਿਆਂ ਧੋਂਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਭੋਗ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸੋਦਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਵਾਲੀਆ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ, ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਜਿਤ ਬੈ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸੇ ਸੋਦਰ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਛੇੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸੋਦਰ ਵੀ ਟਵਾਈਸ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਚ ਵੀ ਤੇ ਰਹਿਰਾਸ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ, ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ ਜਿਤ ਬੈ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ, ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਸੁਖ। ਹੁਣ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਡਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਤੁੱਛ ਹਨ। ਉਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਗ ਰਾਗਨੀਆਂ ਔਰ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਤੁੱਛ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਸੋ ਕਾਲਡ ਅਖੌਤੀ ਤਥਾ ਕਥਿਤ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨ ਕੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਵਿਅੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾ, ਉਸ ਦਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜ।
पर मैं हैरान रह गया रहराज साहब विच ही अगे गुरु पातशाह सोदर की गल करके ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਉਹ ਅਗੰਮ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਅਗੰਮ ਰੂਪ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਉਹ ਅਗੰਮ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਮੈਂ ਥਾਨਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਤੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮਝੇ, ਮਤੇ ਤੂੰ ਸੋਚੇ ਰਾਕਟ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਧਰੋਂ, ਮਤੇ ਤੂੰ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਮਤੇ ਤੂੰ ਸੋਚੇ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਇੰਜ ਉੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਲੋਕੀ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਿਆ 1-1 2-2 ਫੁੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਤੇ ਛੱਤ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਛੱਤ ਤੱਕ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2 ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਜੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ, ਬੜੀਆਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ऐसे मिसमरिज्म और हिप्नोटाइज करने वालियां। पर गुरमत कहती है वो रब जी, वो भगवान जी, वो गॉड का घर कहाँ है? तेरे हिरदे में है। इनू असीं अगे समझांगे गुरबाणी दीयां पंक्तियां दे नाल। उस घर दी गल करके, उस घर दे मालक दी गल करके ओदा एड्रैस समझा के, एड्रैस भी समझाया, अगम रूप का मन में थाना, घर ही में अमृत भरपूर है, मनमुखा साध ना पाया, तेरे घर में ही रहते हैं, वसी रब ही हाली है, जंगल क्या ढूंढे, बाहर की लंबड़ जाता, तेरे हिरदे च रहिंदे ने। एड्रैस भी दस दिता। हुण उस घर दे अंदर एंट्री कराने वास्ते सोइला लगा दिता। पहला घर की गल की, सारियां पावर्स उत्थे तुच्छ बयान कर दित्तियां, मीनस सब नूं डिस्कार्ड कर दिता। फिर उदों ओदा मालक दसिया, ओदा एड्रैस दसिया, अते दसण तो बाद कहंदे हुण ए मनुख तू ईच इंडिविजुअल मनुख इंसान उस घर के अंदर किस तरह जावे, वो जान दा ढंग है, एंट्री सिखा दी, हाउ टू एंटर पास दे दिता, फ्री जा। इस जिस घर की गल कर रहा ना मैं, तां मैनू शायद इंज लगा साध संगत जी कि गुरु ग्रंथ साहिब दे सारे रागां नू शुरू करन तो पहला सोदर जपजी साहब, सोदर रहराज साहब ਅਤੇ ਸੋਹਿਲਾ, ਇਹ ਬਾਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ ਨੇ, ਬੇਸਿਕਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1430 ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਚੁੱਭੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਰਹੀਂ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸਿਕਸ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਾਈਦਾ, ਜੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈਦਾ, ਹਵਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਭਰੀਦਾ, ਸਾਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਈਦਾ, ਤਰੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਉਹ ਸਿਖਾਇਆ। उस घर के अंदर एंट्री कराने वास्ते जय घर वाला घर समझा दिता। सवाल नहीं है जय घर, लिखता सानू मिलता है ये जय घर मतलब जेड़ा घर, भाव वो केड़ा घर है, वो जेड़ा घर है उस घर विच जा, ये जय दा घर है, जय जित दा घर, विन दा घर, अल्टीमेट सक्सैस दा घर, जय घर। वो जय घर दे अंदर एंट्री करा दी सोहिला बाणी दे राही। हुण इस घर दे अंदर एंटर कराने तो बाद की करते हैं गुरु पातशाह? असी पहला बाणी की बनतर नूं समझण दा यतन कीता, थोड़ा जिहा पहला बनतर नूं होर अगे तोड़ लईए। बनतर दे विच पहला रहाउ है, तुम गावो मेरे निरभाव का सोहिला, हाउ वारी जित सोहिला सदा सुख होए। 3 टर्म्स डिस्कस करनियां पैन गया। मेरे तू सोहिला गा, पर सोहिला तो दुनिया भी गाती है। एक जगह मैं पढ़ रहा था, गुरु साहब कहते हैं मनमुख भी सोहिले गाते हैं। घर कोई मर जाए दुखी होंगे, वैण पा के रोंदे हैं, उच्चा उच्चा ढाई मार के अगे रोंदे हैं और सोहिले गाते हैं, और मनमुख सोहिले गाते हैं। पर गुरु पातशाह सोहिला लफज लैके मनुख की सोच मुताबक, उसकी जाणू बिरती मुताबक, इनू कहते स्पीकिंग इन वरनैकुलर इंग्लिश, आम पंजाबी कहते हैं प्रौढ़ावादी ढंग के नाल, कि तैनू सोहिला लफज पता चंगा, पर तू सोहिले गाना ना, आ मैं तैनू दसा सोहिला जे तू गाना है तो निरभाव का सोहिला गा, जेड़े सोहिले तू गांदा उन्हें डरदा रहना है। तुम गावो मेरे निरभाव का सोहिला, तुम कौन है? तुम घर वालियां नू कह रहे हैं, भाई साहब संगतां नू कह रहे हैं, गुरु नानक पातशाह भाई लालो नू कह रहे हैं, तुम किनू कह रहे हैं? पता लगा तुम मन नू कह रहे हैं, ओ मेरे मन तुम गावो मेरे निरभाव का सोहिला, निरभाव का सोहिला गा।
ਹੁਣ ਨਿਰਭਉ ਸਮਝਾਂਗੇ ਭਉ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तुम गावो में निरभव का सोयला हो वारी जिस सोयल है ਉਹਦੇ ਤੇ मैं वारने क्यों ਜਾਂਦਾ कारण ਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਭਉ का सोयला ਗਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। I got ultimate peace। ਇੱਕ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ मोमेंटरी प्लेजर्स वास्ते टै पैना, पल भर के सुख के लिए गिर जाना और लंबी उम्र तक दुख सहारते रहना। असी जिन्होंने सुख गिणदे आ ए पल भर क्षण भंगुर के सुखा वास्ते तो गुरु पातशाह कहते सदीवी सुख वाला निरभव का सोए लगा ला जे डर रहता ही नहीं। इसे दी गल करके दूजा शब्द लाते ने ओदा राव कहते ने बाबा जै घर करते कीरत होए सो घर राख वडाई तोए। दूजा राव बाणी दी बनतर दा पूरा सोहले दा लिंक सानू समझना पेगा। दूजे राव च कह रहे ने ओयो जित वाले घर दे विच रह तू अपने आप नू रख तेरी भलाई दे च है सो घर राख वडाई तोए। तेरी भलाई भाई साहब इसी में है। दिस इज फॉर योर बेनिफिट। उस कार च अपने आप नू रख जिस कार च मैं तेनू एंट्री दवाई है बाहर ना निकल। ए राव ते बाबा किनू कह रहे हैं। बाबा मन नू कह रहे हैं, किसी मनुख नू नहीं कह रहे मन नू। बाबा पहले भी तुम गावो मन नू कह रहे हैं दूजे च भी। तो तीजे रहाऊ विच कहंदे ने कैसी आरती होए भाव खंडना। फिर डर लाते पे लिंक कैसी आरती होए भाव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत भेरी। असी ये सारे लड़ीवार ये मैं जिस तरह तुसी टीवी ते सीरियल देखते हो ना सारा अज दा सीरियल खत्म होया ते आंदा टुमारो की होएगा थोड़ा जिहा दस दिन तो रीकैप कल का दस दिन। सो असी अज तो गल शुरू कर रहे हैं टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो एंड उस तो बाद की होएगा। गुरु पातशाह उस घर की गल करके भेरी वजा देंदे ने। भेरी की होंदा है। भेरी होंदा है वो इस इथों छोटा अगों वड्डा है इस शेप विच सैमी सर्कल का भी 1/4 ऑफ द सर्कल ओदा इस तरह सीन होंदा है। वो तू जिहड़ा वजांदे ने ਉਹ ਰਣ ਸਿੰਘਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਣ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਹੁਣ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਅਖਾੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਜਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਐਕੋ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਜਾਣਾ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੀ ਆਵਰਸ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ एनवायरमेंट माहौल में गूंजती रहती है, मनुख के कन्ना च वजदी रहती है। हुण उन्होंने वजाया नहीं जा रहा पर फिर भी वजी जा रही है। इस तरह महसूस हो रहा अनहता अनहद नाद। यू डोंट हैव टू मेक एनी एफर्ट्स। वजदी जा रही है पेरी शब्द वाजन। शब्द की है ज्ञान गुरु ओदी पेरी वजदी जाती है किथे उस घर विच जित दे घर विच। हुण कहंदे ने जित दे घर दे विच अगे चल ते तैनू उस जित दे घर दे विच सदीवी रहण वास्ते जित दे घर दे अंदर एंटर करन वास्ते तैनू दस दियां कि तैनू निमरता दी लोड़ है। काम क्रोध नगर वो भरिया दा राव है। कर साधु अंजुली पुन वड्डा है कर डंडौत पुन वड्डा है। रहाओ ए नम्रता दा प्रतीक तेरी हंबलनेस दा प्रतीक। जे तू नम्रता नाल नहीं लेगा ना कुछ भी तो तेनू कुछ प्राप्त नहीं होएगा। जे तू हंकार दे नाल लेगा तेरा भांडा पुट्ठा रहेगा। किवें खाली चले धनी स्यों टिब्बे ज्यों मियाँ। जिवें टिब्बे होंदे ने ना बारिश उन्हां ते पैंदी है पर खाली रहिंदे ने क्योंकि उन्हां विच पानी टिक नहीं सकता। फरीदा गर्भ जिन्हां वडियाइयां धन जोबन आगाह मैं इन्ने पैसे वाला मेरा इन्ना जोबन है मैनू इन्ना सब कुछ पता है मेरी इतनी अकल है मेरा इन्ना रंग रूप है असी फलाने कुल दें ये करेगा ना तो तू
कर साधु अंजलि पुन वड्डा है, कर डंडोत पुन वड्डा नहीं कर सकेगा, घर अंदर एंटर नहीं कर सकेगा, रब जी नाल विआह नहीं करा सकेगा, कोई मैट्रीमोनियल तेरी हेल्प नहीं कर सकेगा, कुआरा रह जाएगा। वननेस ऑफ गॉड यू कैन नॉट अचीव। इस करके नम्रता नाल नहीं, मैनू तो ज्ञान नहीं है, पर आम तौर पर लोग क्यों, अच्छा तुसी की कहना चाहते हो, चंगा दसो। नहीं जी मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मनु गुरु पातशाह ने सिखाया हारो तिरे, जीतो बूढ़े हारो तिरे, सानू कोई जित हार दी नहीं। नहीं वीर जी मैं नहीं कुछ दस सकता। नम्रता नाल प्यार नाल आओ सांझ करिए। किसी कोलों भी असी कुछ सीखना होए तो सानू गुरु पातशाह टेक्निक समझा रहे हैं कि नम्रता दे नाल चल। नेक्स्ट, करो बेनती सुन मेरे मीता दा, रहाओ है औद कटै दिनस रैन आ रहे। ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਡਰਾਵਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਉਮਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, औद घट है दिनस रैन आ रहे, दिन रात उम्र घट रही है बच्चों, इंज लिखा है। इस करके गुरु ने मिलकर काज सवार, पहला ही निरभाव का सोयला सिखा रहे ने, डरन की कादी लोड़ है, उम्र तो घटनी घटनी है। जिस दिन मां के पेट च असी कंसीव होए उसी दिन मरण लिखाए मंडल में आए, या उसी दिन जो उपजो सो बिनस है, मौत के नाल लिखी गई। मैं सोच रहा सी हेल्थ की डेफिनेशन, पीपल गिव द हेल्थ की डेफिनेशन कि एबसेंस ऑफ बीमारी इज हेल्थ की डेफिनेशन। मैं सोच रहा सी हेल्थ की डेफिनेशन कोई मनुख ये नहीं दे सकता कि मैं परफेक्ट हेल्थ ही चाह। क्यों? क्योंकि साइंस भी दसदी है हर पल साडी बॉडी एक एक सेकंड विच ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सब कुछ चेंज हो रही है, चमड़ी भी बदल रही है, हड्डियां भी बदल रही हैं, सब कुछ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सारे जितने डॉक्टरी लैंग्वेज ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ सब कुछ बदल रहा है। लेकिन ये सब कुछ बदलदिਆਂ ਅਸੀਂ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਟੂਵਰਡਸ ਡੈਥ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪਲ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕੁਅਲੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਜੀਵਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸ ਬਾਹਰ ਗਿਆ मौत, जे दूजा श्वास अंदर ना आए वो भी मौत। बिल्कुल इक्वली नाल नाल चल रही है। ਉਹਦੇ 50 ओवर ने, ਉਹਦੇ भी पूरे 50 ओवर ने। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50 ओवर मिल जा रहे, नो बिल्कुल नाल दे नाल इक्वली है। औद घटै दिनस रैन आ रहे, ये असी 5वें दिन समझांगे कि औद घटै दा गुरमत अनुसार की मैन है। कोई नहीं डराया, उम्र घटन बारे नहीं गल कर रहे। औद घटै दिनस रैन आ रहे, मन गुरमिल काज सवारे, तू गुरु ਨੂੰ मिल के अपना काज सवार लै। ये साडे सोयले दी ਬਣਤਰ। ਹੁਣ इस ਬਣਤਰ तो बाद आओ अज असी पहला सब तो शुरू करिए विसाखी तो। परसों चौथ मैनू न्यूयॉर्क कॉल आई BBC लंडन एशियन नैटवर्क वालों कि जी असी विसाखी ते तुहाडी इंटरव्यू करना चाहते हैं। पहली इंटरव्यू के मुताबिक संगतां दोबारा मंगदियां ने। मैनू कहते जी ये विसाखी का सिखिज़म नाल की रिलेशन है? मैं कहा जी विसाखी तो गुरु नानक पातशाह तो हज़ारों साल पहले तो हो रही सी, लोग खुशियां मनाते सन, लोग फसलां कटते सन। गुरु नानक पातशाह ने तो विसाखी, भादों, मस्या, पूर्णमाशी, खितवार, असू, चेत, ये सारे फोक जेड़े मनुख नूं पता ने 12 महीने 6 रुत्तां दे लफज वरत के ਇਹਦਾ रब जी दे नाल आनंद कारज दा मिलन दा ढंग दसिया। वो 12 माह च है ते 12 माह भी 2 ने। असी विचार चुके अपनी टेप विच, जिहड़ी विसाख दी टेप है, विसाख धीरन क्यों वाडियां, ते जां बाबीहा प्रिय बोलिया कोकिल बाणियां विच भी असी 12 माह के बारे काफ़ी डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। अज मैं उसकी डिटेल नहीं जाना, पर 12 माह तुखारी महला पहला अते माझ महला 5वां, 2 12 माह ने। तुखारी विच गुरु नानक पातशाह क्ल्यू देंदे ने मिलन दा, तू सुन किरत कर्म मा पूर्व कमाया जी, ते माझ विच कहंदे ने किरत कर्म के विछड़े।
विछड़े आ मिलना चाहते हैं, दैट्स द प्रॉब्लम। हुण जे सानू कोई कहे मरण तो बाद मिलोगे तो फिर इत्थे की करिए? गोबिंद मिलन की तेरी बरिया, पर मिलोगे मरने के बाद। कौन कह गया सानू? असी विचारिया नहीं, हुणे मिल सकता अज। गोबिंद मिलन की तेरी बरिया अज मनुख नूं दस रही है, यू कैन, इट्स सो ईजी, सो सिंपल, ओनली यू हैव टू गेट अप। सिर्फ चिड़ंग लगनी चाहिए तेनों कि मैं मिलना चाहता, वरना कोई गल नहीं, स्टे अवे। मोमेंटरी प्लेजर्स नाल तू मस्त रह। हुण गुरु पातशाह कहते ने, मैं तेनों क्ल्यू दसा कि जे तू विछोड़ा दूर करना चाहता है ना, नानक विसाखी, उते खखे नूं बिंदी लगी है, नानक विसाखी प्रभ पावै। किवें? विसाखी उथे क्या है? तेरा जीवन पूरा विसाख, सिर्फ अप्रैल का महीना नहीं, सिर्फ 13 या 14 अप्रैल नूं नहीं, सारा जीवन तेरा विसाखी का महीना है। नानक विसाखी प्रभ पावे, यू कैन अचीव गॉड। किवें? सुरत शब्द मन माना, तेरा मन मनता नहीं है, तो इस मन नूं ना मनाउण वास्ते ना तेरी ना सुरत टकाने नहीं है। सुरत नूं टकाने लाने वास्ते, ताकि मन तेरा काबू आ जाए, तेरा यही मन तू छड्डना नहीं है। जी मन को मार दो, मन को सप्रेस कर दो, नहीं, कुछ नहीं करना, सिर्फ इसे मन का भांडा सीधा करना है, यही मन है। पर मन में मन उल्टो मरै करना है। गुरु पातशाह डकने की वार च कहंदा है, इसे मन नूं बस अंदर ही तू पुट्ठा करना है, रहना है मन तेरे कोल। जो ये मन होएगा ना तेरे को ट्रांसफॉर्म, जो पुट्ठा हो जाएगा, तो इसे मन को कहे आनंद पिया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। इसे कोई ए मन मेरिया तू सदा रोअर नाल ले। जेडे सानू कहते जी मन मारना है, वो तो मन मारना गुरु नानक पातशाह तो पहला फिलोसफी सी, कोई मनुख नहीं मन मार सकता। जी मन नूं शून्य कर दो, बिल्कुल जीरो कर दो, नहीं। गुरु नानक पातशाह कहते तेरा मन पहला गड़बड़ी च है, गड़बड़ तो इनू तू शून्य विच लिया, शून्य तो बाद इनू ट्रांसफॉर्म करके फिर इस जग च लिया। अगेन एक है, अनेक है, अनेक है, फिर एक है। पहला गंदगी है, फिर जीरो है, फिर ट्रांसफॉर्म्ड है, पॉलिश्ड है। हुण इस मन नूं समझा रहे ने, सुरत शब्द, सुरत दे नाल जे तू ज्ञान, विजडम, यूनीवर्सल ट्रूथ ज्ञान लगा देवें, सतगुर लगा दें, तां शब्द मन माना तेरा मन सीधे राह पै सकता है। हुण गुरु अर्जन पातशाह ने पूछिए माँ जी, कहते ने तू उद्यम नहीं कर रहा, देख मैं तेनों उद्यम बारे एक क्ल्यू दिया। कहते ने वैसाख धीरन क्यों वाडियां, जिन्ना प्रेम बिछो वाडियां। फसलां वड्डदे ने ते फसलां उत्थे पईयां रहिंदियां, लेकिन जिहड़ियां फसलां दे विचकार कुछ कम दा नहीं होंदा, उन्हां दा खसम कोई नहीं होंदा, किसान भी उन्हां नूं लैके नहीं जांदा, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। गुरु साहब कहते ना आसा की वारी छुट्टे तिल बुआड़ ज्यों सुंजे अंदर खेत, खेता अंदर छुट्टियां कहो नानक 100 100 ना 100 मालक बन जाते हैं, ये 100 खसम बन जाते हैं, इनू चुकन आ जाते हैं। कौन? पिंडा के लोग ले जाके उन्होंने वेचते रहते हैं। तेरा कोई है नहीं, अवली वारस नहीं है। तू वाडियां, वाडियां किनू कहते हैं? वाडियां विछड़ी हुई नू कहते हैं, छुट्टड़ नू। असी लास्ट टाइम जनवरी भी शब्द विचार कर रहे सा, कबीर कूकर राम को मुतिया मेरो नाओ। तो असी सोच रहे सा मुतिया मतलब ना लिखा है जी, जे मोती मेरा नाम है। वो कईयां ने पप्पी कुत्ते का नाम रखा होंगे, कईयां ने कुछ रखा होंगे, सारे ने तो मोती नहीं रखा है कुत्ते का नाम। ये मुतिया मोती ना नहीं है, नाउन नहीं है। मैं अनुमान कोशिश देखा, मुतिया मतलब छुट्टड़, विछड़ी हुई, लवारिस, गुआची हुई। हाँ मैं राम दा कुत्ता पर लवारिस हाँ, मुतिया मेरो नाम, छुट्टड़ा। ते मैनू विकार घेर के पकड़ के जंजीरी पा के गले मारे जेवरी जा खिंचैदा जाओ, मनु ले जाई जाते हैं। कदे काम लै जाता, कदे क्रोध लै जाता, कदे लोभ जाता, कदे मोह लै जाता, कदे हंकार लै जाता। मेरे मनु कुछ समझ नहीं आती, कदे तृष्णा मनु पकड़ के लै जाती है।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੁੱਤੀਆ, ਮੁੱਤੀਆ ਹੀ ਵਾਡੀਆਂ ਹੈ, ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਛੁੱਟੜ। ਇਸ ਛੁੱਟੜ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਛੁੱਟੜ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਛੜੀ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵਿਛੜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਇੰਝ ਤਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਜੇ ਬੱਚਾ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਵੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਵੇਲੇ ਇਹ ਖਿਡੌਣਾ ਲੈ ਦਿਓ, ਇਹ ਜਲੇਬੀ ਲੈ ਦਿਓ, ਇਹ ਤੂਤੂ ਲੈ ਦਿਓ, ਇਹ ਲੈ ਦਿਓ, ਇਹ ਲੈ ਦਿਓ, ਪਿਤਾ ਮਨਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜੇ ਉਂਗਲ ਛੁੱਟ ਜਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣ, ਕਈ ਹੋਰ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਔਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਇਹ ਖਿਡੌਣਾ ਲੈ ਲੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਲੈ ਲੈ ਜਲੇਬੀ, ਪਾਪਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਲੈ ਲੈ, ਪਾਪਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਵਿਛੜਿਆ, ਛੁੱਟੜ, ਵਾਢੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰਾ ਪਾਪਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਲੈ। ਨੋ, ਧੀਰਜ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ? ਵਿਸਾਖ ਧੀਰਨ ਕਿਉਂ ਵਾਡੀਆਂ? ਧੀਰਨ ਮੀਨਸ ਧੀਰਜ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ? ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਛੋ ਹਰ ਸਾਜਨ ਪੁਰਖ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਲੱਗੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਖਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅੱਡ ਨਾ ਮੋਲੋ, ਮੇਰਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਨਾ ਕੋਡੀ ਨਹੀਂ ਦਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। I want to rush, I'm in hurry, मेरा सब तो कीमती कम हो गया है। अवर काज तेरे कितने काम मिल सा संगत भज केवल नाम, मेरा इस वेले प्रियोरिटी बन गई है। I want to meet you। ठीक है मैं पैसे कमाना, ठीक है मैं वोटी बच्चे करदा, ठीक है मेरा परिवार है, ये सब कुछ है, पर ये सारा कुछ करदे होया मैं तेरे बिना कुरबल कुरबल ना, मैनू अशांति है, मैनू पेशेंस नहीं है। जे मेरा नौकर वक्त सिर काम ना करे मैं उन्होंने गालां कड्डदा, जे मेरे वोटी है, मेरा आदमी कहना ना मन्ने, बच्चे मेरा कहना ना मनन, माँ प्यो मेरा कहना ना मनन, मैं उन्होंने यल करदा। जे मेरे ऑफिस अंदर या मेरी फैक्ट्री के अंदर मेरा नौकर कुछ ना करे मैनू गुस्सा चढ़ जाता है। मैं पेशेंस नहीं है, विछड़े होया ना, तो तू मैनू मिल जाए तो मैनू ये सारा कुछ करना ना धीरज आ जाएगा, पेशेंस आ जाएगी, ट्रैफिक जैम भी होएगा, मैं छित्था नहीं पावांगा, फ्रस्ट्रेट नहीं होवांगा। क्यों ना फ्रस्ट्रेट, क्यों मैनू गुस्सा चढ़ता है, क्यों मैं क्रोधित होंदा? वाई आई मीन रश टू मीट यू, मैनू क्यों काल है तेरे नाल मिलन दी? क्योंकि मैं डरिया होया। मैं इस अनजान गली दे विच एक कुत्ता आ गया, भौंका इस तन ताई, मैं डरिया होया। हुण इस डर नूं दूर करन वास्ते गुरु पातशाह निरभौ का सोहला शुरू करते हैं। सोहला बाणी का यह जिहड़ा पहला शब्द है गुरु ग्रंथ साहिब दे विच गौड़ी राग जिथे शुरू होता है, तुसीं घर जाके देखना गुरु ग्रंथ साहिब के 151 नंबर पन्ने तो शुरू होता है। 151 नंबर पन्ने ते तुसीं 8 10 15 20 पन्ने पढ़ना तो गौड़ी दे विच तुहानूं पता लगेगा वो सारा जो कुछ गुरु पातशाह कहंदे ने कि हुंदा की है। मैं तुहानूं पहला उत्थों लैके अगे शब्द दे विच चलांगा। जे असीं इसनूं ठीक तरह एक बारी ठीक ट्रेन ते चढ़ गए तां साडा सारे दा सारा मैच, ऑल द 50 ओवर्स वी कैन मेक गुड रन्स। मैं जदों गौड़ी राग की डिटेल गया जिथे कि दूजी वारी भी जय कर कीरत लिखिया होया है, उत्थे मैं देख के हैरान रह गया। मन बेलगाम होवे तां विकारां दे वस पै जांदा। उत्थे शब्द ने विकारां दे वस बेलगाम मन, यही बेलगाम मन डर विच रहिंदा है, चिंता फिकर तौखले संसे नूं रहिंदे ने। ये मन रजा च नहीं रहना चाहता जदों उसनूं डर चिंता तौखले होण, इसी करके निरभौ का सोहला नूं गवाया। ये मन तृष्णा और हौमे विच फस जाता है, यदी लिसनिंग बंद हो जाती है। Whenever any person does not want to listen the truth, whosoever is ignoring the truth, that is the biggest sin। और वो सच समझना नहीं चाहता, वो कहता असी इस तरह तड़फते हुए कुरबल कुरबल करते ठीक हाँ, असी शांत होना नहीं चाहते हैं। पर जिहड़ा डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस है ना, वो बहुत बड़ा दुख है।
उस दुख ਨੂੰ दूर करने वास्ते गुरु पातशाह मनुख ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੱਚ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ, ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਪਲੀਜ਼ਡ, ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਨ ਹੈਪੀਨੈਸ। रजा मनन वास्ते जे गुरु की गल सुन लवें तो रजा मननी आ जाती है, फियर दूर हो जाता है, तो इसनों अपने कर्मां उत्ते मान करन दी आदत खत्म हो जाती है। मनुख मान करता ना, आएगा ना तेरे दान है कीमत ना पवे, मैं इतना दान करांगा, ये जे रब जी को मैं कहना मनवा लांगा, जे रब जी नहीं मननगे तो फलाने तीरथ ते जाके कर दांगा, जो नहीं मननगे किसी गुरुद्वारे के प्रबंधकां नूं कहांगा मैं तुहानूं वोट देंगा, तुहानूं मैं 100 150 या 200 वोटां लै देंगा। इस करके तुसीं अरदास विच मेरा नाम बोलो, मेरे वालों संगमरमर लगा, पक्खा लगा, सोने की पालकी लगी है, या मेरे वालों यह होया, ताकि अपने दान की मैं कीमत पवा सकां। उस सारी लड़ी दे विच जयकार दी जिहड़ी गौड़ी राग विच है, ये सारियां गल्लां लिखिया कि मनुख अपने कर्मां दा मान छड्ड दिंदा है। सारे वो सारे शब्द पढ़ोगे ना, ये सारियां गल्लां पता लगियां। उत्थों लैके असीं वापस आ गए सोहिला दे पहले शब्द विच। आओ हुण इस पहले शब्द नूं समझिए। पहला शब्द रहाओ, तुम गावो मेरे निरभाऊ का सोहिला। सोहिला की होंदा है? पिंडां दे विच या अज तक भी अज दा नाम लेडी संगीत रखिया होया। लोकां ने घरां विच विआह वेले जदों विआह हुंदा है ना, कुड़ी दे घर बैठ के जब मुंडे दे घर बैठ के वो गीत गांदियां ने बीबियां, रिश्तेदार, महल्ले वाले। सोहिला दा आम तौर ते मन्निया जाता है कि सोहिला गाया जाता है जदों कुड़ी विआहण वाली है, उस तो कुछ दिन पहला उहदे घर महल्ले वालियां ते वो सारे सहेलियां रिश्तेदार गाते ने। वो सोहिला जिहड़ा बीबियां गांदियां, उस सोहिले विच ना दो अंदाज होंदे ने, दो जज्बात होंदे ने। एक पहला विछोड़े दा दुख, साडे तो विछड़ जाएगी, दर्द, ते दूजा जज्बात उहदे विच हुंदा है प्यार भरिया असीस दा, ब्लैसिंग्स दा। वो सोहिला है। पर इस सोहिले नूं गाण वास्ते लोकी इस तो बाद डरे रहंदे ने। सोहिले दे विचों गल निकल के आ रही है सामने, मनुख डरदा है ते कुड़ी दे नाल सोहिला गा के उस नूं दाज दिंदा है, मते वो रोटी ना देण। दैट इज द बिगेस्ट कैच कि पति नाल और सस नाल हमेशा डिसहारनी रहती है। तू की समझनी असीं तैनूं रोटी नहीं देंगे, तेरे तो पहला असीं जींदे नहीं सां, खांदे नहीं सां, तेरे तो इलावा कि इस घर च कदे कोई आया ही नहीं। ये उन्होंने इनसिक्योरिटी मन च हो जाती है। दाज स्टार्ट्स अगेंस्ट फियर, डर, पता नहीं सुखी रखणगे कि नहीं। पर असीं कैश जे देना है तो असीं कुड़ी दे नां ते फिक्स कराना है, होर सस ना लै जाए, सोहरा ना लै जाए, ननाण नूं ना विआह देन, फिक्स कराना है कुड़ी दे नां ते, होर कुड़ी दे बच्चों के नां ते। डर, कोई जी मुश्किल वेला भी आ सकता है, इस करके सोना इनू देना है, ये सोना बेचे जदों इहदा पति मर जाए। पहला ही नैगेटिव सोच लिया, जिवें ये सारी उम्र रहेगी, पति मर जाएगा पहला ही। आओ जी जवाई साहब, तुसी वाह, बड़ी सुलखनी कड़ी, बधाई होवे जे, बहुत जी वाह जी, असीसा, पर मर जाएगा, खतरा है, डर है, सोना दे रहे हैं इनू, तू तो मर जाना है, मेरी इसी एक्टिंग इंज ही लवो, क्योंकि असीं इंज ही सोचते हैं। दैट्स वाई द फियर स्टार्ट्स। सारा असीं उस कुड़ी दे नाल जो कुछ करते हैं ते डर दे कारण ही बचपन तो सोचते रहते हैं, साडी कुड़ी ते मंगलीक है जी, मंगलवार नूं जम्मनी है, इनू पता नहीं की रिश्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा। डर सोहिला गाया है, डर। ताई गुरु पातशाह, मैं सोचता रहा, गुरु पातशाह सोहिले नू वर्त के लफज नू फिर नू काट भी मार के कहते ने, तू गाना है ना सोहिला दा, मेरे निरभौका वाला गा, तू डरदा रहना। इसे करके तो तू धी वास्ते जिवें डरदा रहिंदा, कुड़ी वास्ते जिवें डरदा रहिंदा, इस तरह ही तू आप रब जी दे नाल विआह कराने वास्ते डरदा रहना। पता नहीं जे रब जी दे रस्ते पै गए दुनिया जीन नहीं देगी, जे ईमानदारी नाल काम कर रहे दुनिया जीन नहीं देगी, वीर जी इनकम टैक्स थोड़ी बहुत हेरा फेरी करनी पैंदी ना, दुनिया जीन नहीं देगी। डर, क्योंकि तैनूं अपनी धी विआहण वेले डर है, धी विआहण वेले डर, तो हुण इहदा रिश्ता ठीक मिल जाए
इस करके टेवा, नक्षत्र, तारे मिलाओ, कुंडली मिलवाओ, कोई पंडित जी लाओ, वो कुंडली मिलाएंगे तो सुखी होगा। पंडित जी पैसे इतने दिए, कुंडली मिल गई, पर लड़की को देखो 2 साल के बाद हो सकता है इसका भर्ता मर जाए, तो फिर क्या करें? पैसे और लो, कुंडली और रिफाइन करो, इसको कंप्यूटर में और प्रोग्रामिंग करो, कुंडली और जोरदार निकालो, पैकिंग उसकी बढ़िया होनी चाहिए, पैसे और लो, डर। असी गुरु नानक दे अखवाण वाले, असी ये विसाखी मनाण वाले, खालसे दा साजना दिवस 300 साल लंघ गया, असी माण दे नाल खंडे बाटे की पौल छकण दे बावजूद भी डरदे हां। असी किसी ना किसी तरीके इधरों नहीं इधरों कन हाथ घुमा के कुंडली कढाने हां, कुंडली मिलवाने हां, पत्री मिलवाने हां। ए नोशन मैनू डिस्कस करनी पेगी ताई तो निरभाव का सोइला समझ सकांगे। मैनू माफ कर देना। इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू शेयर दिस बाणी विद यू इन 60 मिनट्स, क्योंकि मेरे वास्ते प्रॉब्लम है जे टर्म्स ही ना डिस्कस होण कि जे किसी कह दियो जी तुसी बेसन के पकौड़े बनाने ने, उन्होंने बेसन भी ना पता होवे, गरम किन्ना करना है, उबलदा होना चाहिए, टैंपरेचर किन्ना होना चाहिए, बेसन दे विच की पाना है और बेसन की इंग्रेडिएंट होंदा है, जे सब कुछ टर्म्स ही नहीं दसांगे, फिर टर्म्स दसन तो बाद उन्होंने दसांगे मिक्स किवें करीदा है। जो तक पूरा होम साइंस का सब्जेक्ट नहीं होएगा, जो तक पूरा खाना खजाना का सीरियल खत्म नहीं होएगा, पकौड़े नहीं बन सकते ने। आई हैव टू डिस्कस ईच एंड सिंगल टर्म। डरे हुए हाँ, धी नूं विआहण वास्ते तौखला है, बच्चा पैदा होया ते तौखला है, इनू स्कूल किहड़े एडमिशन करावांगे, कोई भी रिश्वत लै लवे, बेस ही फाउंडेशन रख दी पर एडमिशन एयर कंडीशन स्कूल विच करानी है, इस करके ये कीता जाए, वो कीता जाए, ट्यूशन रखाई जाए, जो कुछ भी झूठ भी इख्तियार करना पवे, बच्चा डर, हर पक्षों डर करदे 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 असीं इसदा नां पता की रख लिया, सोइला। बिगेस्ट भुलेखा कि मरण वेले पड़ीदा है। सोइला सिख जगत के अंदर सब तो वड्डा ट्रिगर होने का चांस, सब तो वड्डा डिविएट होने का, ड्रिफ्ट होने का भुलेखा, एक्सीडेंट के सोइला मरण वेले पड़ीदा है। इस सोइला बाणी दी विचार करन तो पहला यह समझना बहुत जरूरी हो गया कि गुरु पातशाह मैनू की समझा रहे ने। निरभाओ का सोइला, तेनू डर बस कोई ना रवे, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਨਿਰਭਉ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਨਿਰਭਉ ਅਵਸਥਾ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਿਰਭਉ ਨੂੰ फॉलो करना पेगा। ये मन जैसा सेवे, ये जैसे कोई याद करता है ना, तेहे कर्म कमाए, वैसी इसकी डीड्स हो जाती हैं। ये डरपोका नूं तकदा रहिंदा है ते डरिया रहिंदा है। डर डर डरना मन का शोर, ये मन का शोर है, एवं डरदा रहिंदा है। ओ वीर जी सुना है सुनामी आने वाला है, भूचाल आने वाला है। ओ यार इंज मान लो आसी साहब ने एक दिन तो मरना ही है, अच्छा भूचाल नाल ही मरना होएगा, अच्छा सुनामी नाल ही मरना, डर कादा? मरना तो है ही है, डर कादा? निरभाओ क्यों याद करना, जिहड़ा निरभाओ है रब। असी इतना समा लगाया जिहदे विच असी समझदे रहे भी एक ओंकार सतनाम करता पुरख, ये सारे विच गुरु पातशाह कह रहे हैं रब इंज है, पर इंज तां दस रहे हैं उहदी वडियाइयां करके कि तू इंज बन। रब दी वडियाइयां इस करके नहीं कर रहे हैं कि रब जी वाह वाह करनगे, रब जी खुश होकर तैनू कुछ देणगे, जो देणगे तैनू फिर उहदा डर प्यारेगा। दात प्यारी विसरिया दा तारा, रब जी मैनू पुत्र दिओ ना, पुत्र असीं बंगला साहब जाके लिया, ए पुत्र असीं बाबे बुढ़े दी बेर जाके लिया, ए पुत्र असीं फलानी जगह तो लिया, हुण पुत्र दा डर हो गया, मर ना जाए, हाय इनू एड़ा हो जाए, हो जाए डर, डरता रहेगा। दात प्यारी विसरिया दा तारा हो जाएगा, देण वाला विसर जाएगा। इस करके तू निरभाव हो जा। उस निरभाव अवस्था वास्ते गुरु पातशाह कहंदे ने तुम गावो मेरे निरभाव का सोइला। निरभाव हो जाएगा ना तां तू इस घर दे अंदर एंटर कर सकना है। जिस घर की गल मैं सोदर तो करता आ रहा, जिसका मालक सोपुरख तेनों दसदा आ रहा, एड्रैस समझाता आ रहा, तू अपने निज घर में जाण वास्ते, उस घर नूं उहदे नाल अचीव करन वास्ते हुण इस घर की गल करदिआं कहंदे ने गावो, तुम गावो। गावो किनू कहंदे ने, गायन किनू कहंदे ने? कोई सुर की गल चल रही है, कोई संगीत की गल चल रही है,
कोई लयबद्धता की गल चल रही है, कोई हारमोनी की गल चल रही है, कोई मैलोडी की गल चल रही है। गायन सिंपल, आमतौर पर बीबियां पार्टी च बैठिया हो ना तो एक दूजे नाल गल करदियां, तुहाडे मियाँ जी नहीं आए अज पार्टी ते, साडे मियाँ जी हर वेले माया का ही राग लापते रहते हैं, माया का राग लापते रहते हैं, भावें उन्होंने सारे गावां ना आंदा हो। अखान है जिस पासे हमेशा चित सुरत लगी रहती है, मनुख हर वेले उही धुन अंदर काम करता है, धुन उसे दी ट्यून विच नचदा रहता है, धुन गायन। वो हर वेले ना माया दे ही गीत गाते रहते, आए नहीं अज साडे मियाँ जी हर वेले शराब दे धुन विच रहते ने, म्यूजिक गायन। गायन मीन्स उस पासे वो धुन ही लगी रहनी हर वेले, वो ट्यून वजदी रहनी दिमागी, जिस ट्यून ते मन चित लड़ नचना चाहता हर वेले है दे मन का चाह, नचन कुदन मन का चाहो, पर नचे टप्पे भगत ना होए। वो मैनू कहता जी विसाखी अज चेंज क्यों हो गई है, वो BBC लंडन वाले मैनू पूछते हैं। मैं कहा जी विसाखी चेंज इस करके हो गई है कि गुरु नानक पातशाह कहते सी तुसी नचदे टपदे रहंदे हो, सिर्फ विसाखी ते गिद्धा पा के भांगड़े पा के सिर्फ नचदे टपदे रहंदे हो, जो तुहाडा अज है इस अज चो तुहाडा कल निकलना है, ते अज नचोगे टपोगे सिर्फ, तो नचोगे टपोगे जो टुमारो भी नचोगे टपोगे ही निकलेगा ना। इस करके तुसी इहदे विच दुखी रहोगे, सदीवी सुख नहीं प्राप्त कर सकोगे। रीसेंटली मैं सुनिया अमेरिका दे विच 10-10 हज़ार मुंडे कुड़ियां सिखां दे रल के भांगड़ा नाइट करते हैं, 10,000 ऑल ओवर अमेरिका कैनेडा लंडन तो टीमां आंदियां भांगड़े वालियां, और रल के विसाखी मेला मनाते हैं। हवाई जहाज़ां दी टिकटां विकदियां, होटल दी टिकटां विकदियां, उन्हां दी बुकिंग होती है, उन्होंने प्रवोक किया जाता है। पता लगा जी वीर जी कल उत्थे ना जिहड़े 10,000 मुंडे कुड़ियां नच रहे सन, नचन टप्पण चो सुख नहीं ना मिलिया, तू सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड वाल तक्या क्यों, तेरा नचद्या नचद्या उन्होंने हाथ किवें लग गया, यही तो नचन टप्पन चो निकलेगा। तो निकलिया कि कहते जी वीर जी राती उत्थे ऑन दी फ्लोर जिथे नचते ने 3 मर्डर हो गए। तो मैं इस BBC लंडन वाले की इंटरव्यू में मैं उन्होंने कहा जी लाइव टैलीकास्ट सी, मैंने कहा गुरु साहब देख रहे सन नचते टपते रहते हो, ठीक है तुसी खेती बाड़ी की फसल वड्डी यदि खुशी मनाना चाहते हो, पर खुशी मनाद्या ना ये ना नचन टप्पन मन का चाओ, नचिया टप्पिया भगत ना होए विचों ना, तू अपनी ना सुरत नू अपने मन नू टिकाने लाने वास्ते ना सुरत शब्द मन माना नाल जोड़ लै, ए विसाखी हो जाएगी। अदरवाइज विसाखी नचन टप्पन ते गिद्धा रह गई है, विसाखी मेला रह गया जिहदा गुरमत नाल दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं है। जे सिर्फ गुरमत दा डांस और भांगड़े दे नाल और सिर्फ उहदे गिद्धे दे नाल ताल्लुक होंदा ते एक प्रांत तक विसाखी सीमित रह जाती। गुरु पातशाह सारी विसाखी नू सारी दुनिया दे वास्ते समझाना चाहते हैं, इस करके कहते हैं तू सदीवी सुख माणन वास्ते ना ओदी धुन विच नच, ओदा गायन कर, निरभौका सोहेला दा। हुण गायन नू थोड़ा होर समझिए, इस घर दे विच ना किसी दी एक दूजे नाल सुर ही नहीं मिलती। कदे किसी घर सारे ने अपने अपने वाजे रखे हुए, कोई सारे ने अपने अपने सितार रखे ने, सुर मिलाते रहते हैं, नहीं सुर नहीं मिलती, धुन ट्यून वेवलेंथ आपस विच अंडरस्टैंडिंग सुर नहीं मिलती। ऐ तां साडा बच्चा जी बिल्कुल विगड़ गया, पता नहीं पार्क विच जांदा एक बंदा बस है हमेशा ओदे गुण गांदा रहिंदा, गांदा मीनस जिस पासे सुरत लगी रहे मनुख उस अनुसार जो कुछ करता रहता उन्होंने गायन कहते हैं गुरमत। पर गुरमत का वो नैगेटिव गायन गुरु पातशाह एक्सप्लेन करते हैं तो पॉजिटिव गायन सानू समझाते हैं। सो दर केहा सो घर कह जितवै सर संभाले वाजे नाद अनेक संखा, केते वावण हारे केते राग परीसो कईन, केते गावे धूनो पौन पानी, गावे 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 गावन 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 सारा उहदे विच बयान करते हैं कि तेरी धुन गाते हैं, तेरे नियम रजा च रहते हैं। इस करके तेरी रजा विच रहन कारण उन्होंने भौ नहीं रहिंदा, भै रहत रहते हैं। भै विच पाउण वै सदवाओ, भै विच चलै
लख दरियाओ भै विच अगन कढिया विगार, भै विच धरती दब्बी पार, भै विच सूरज, भै विच चंद। सारा रजा विच रहण दा ढंग है गायन। पर जिहड़ा गायन असीं करते रहंदे गुरु पातशाह उस गायन नूं जिन्हों सारा सिख जगत समझी जा रहा, शायद वाजे तबले ते गायन दा महान कीर्तन दरबार हो रहा है। गुरु पातशाह कहंदे ने कोई गावे रागी नादी बेदी बहु पांत कर, नहीं हर हर पीजै राम राजे। जिना अंतर कपट विकार है तिना रोए क्या कीजै। इस शब्द ਨੂੰ उच्चारण करें, जिन नानक गुरमुख हिरदा शुद्ध है हर भगत हर लीजै। हिरदा शुद्ध करना है तू रब ਨੂੰ प्राप्त करने वास्ते बाहरों कोई शो ऑफ ना कर, तू ਉਹਨੂੰ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ नहीं रिझा सकता। एक गायन जेकर सानू समझ आ जाए, गायन असी समझ आ गया, जदों गायन समझ आ जाएगा गुरमत दा तां पता लगेगा कि केड़ा गायन करा। निरभौ का सोहला गायन कर। प्रीफेस रहाओ बाणी दी बनतर सोहला बाणी पूरा टॉपिक सानू समझण वास्ते गायन समझना पेगा। हुण इस गायन नू समझण वास्ते पहला असी गुरु पातशाह ने पुछदे हां, कहंदे ने एक गावत रहे मन साध पाए, साध ना पाए हौमै विच गावै बिरथा जाए। मैं बहुत सोहना गांदा, मैनू मिठा गाना आंदा, मैनू राग विच गाना आंदा है, साडी दुनिया साडे कीर्तन बुक करती है, असी बड़े वड्डे रागियां, असी फलानी थां ते रागियां। ए फलानी थां ते रागी ने, ए मिनिमम 51,000 लैंदे ने। सारा कुछ इन्हां नू टाइम दिता जाए, ए बीबी नू ना दिता जाए, इनू दिता जाए, सारा कुछ। एक गावत रहे मन साध ना पाए हौमै विच गावै बिरथा जाए। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਹੈ? ਗਾਵਣ ਗਾਵੈ ਜਿਨ ਨਾਮ ਪਿਆਰ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਚ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਲੋਗ ਜਾਣੈ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ। गीत विच गाना होंदा है, राग विच प्रॉपरली गाना होंदा है या सिंपल ट्यून ते गाना होंदा है, पर उहदे उत्ते टुरना नहीं होंदा। जदों सिर्फ गाया जाए, चित्त ना भिजे, प्रैक्टिकल ना टुरना होए, वो गीत होंदा है। पर ब्रह्म विचार विच की होंदा है? उहदे ते आप बीती हो जाती है, मनुख आप उहदे ते टुर पैंदा है। वो जिहड़ा गायन हो जाता है, उस गायन बारे गुरु पातशाह गल कर रहे हैं। हुण कहंदे ने इस गायन की गल छेड़न तो बाद गुरु पातशाह सानू समझा रहे हैं, गुरमत वाला जीवन जेकर तू जीवें, लगातार उस धुन विच रवें, उस सुर विच रवें। अब मोए नाचनो ना आवे, मेरा मन मांदलिया ना बजावे, हुण मैं गुरु दे ज्ञान दे ताल ते नचदा, मेरा मन वो जिहड़ा है ना ओनू गुरमत विच गायन कहंदे। तुम गावो मेरे निरभाव का सोहला, ਉਹ वाले सुर ताल ते नचना गायन शुरू कर दे, तेरा हिरदा उहदे ते हमेशा ट्यून्ड रवे, हारमोनी रवे। ए गायन है। वरना तो गायन असी कहते हैं रागी गा रहे हैं, असी सुन के आ गए हैं, असी गाया है, लोगों ने सुन लिया। देखो जी टीवी इतना उपराला किया, कितने करोड़ों रुपए लगा के सैटेलाइट तो बड़ा शलाघायोग उपराला है। सानू घर बैठिया अज अमेरिका तक हरमंदर साहब का कीर्तन सुनाई देता है। पर जे असी उहदी शब्द की विचार ना करिए, वो सिर्फ गा देन, तो वो टीवी तो जिहड़ा कीर्तन की आवाज़ निकल रही है उहदे नाल साडे घर दीयां दीवारां नहीं पवित्र हो जांदियां, मनुख का दिमाग नहीं पवित्र हो जाता। दिमाग तां पवित्र होएगा जिच्चर शब्द ना करें विचार। नचिया टप्पिया भगत ना होए, शब्द मरै भगत पाए जन सोए। जेकर तू शब्द अनुसार मर जाए ना तो ये तेरी रियल भगती बन जाएगी। हुण जे तेरी रियल भगती बन गई, तैनू गायन समझ आ गया, तो तैनू डर तो निडर बनना आ जाएगा। उस डर बारे गल कर लीए। उस डर बारे गुरु पातशाह सानू समझाते हैं, तू डरदा रहिंदा है पर निरभौके वाले नाल जुड़न वास्ते पता की कर, रोज रासा विच पढ़दे हां, जिन निरभौ हर निरभौ ध्याया जी, जिन्हां ने निरभौ रब नूं ध्याया ना, जिन्हां ने डरपोक बंदे नूं ध्याया, डरपोक सो काड़ किसी अपने गुरु नूं ध्याया,
डरपोक अपने किसी संत जी ब्रह्म ज्ञानी जी को ध्याया तो वह डरपोक बन गए। जिस इंसान ने जिन निरभो हर निरभो ध्याया जी, तिनका भाव सब गवासी, डर गया, फियरलैस हो गया। डर दे बारे गुरु पातशाह कहते ने, सोकत डरै जे खसम समारे, डर डर पचे मनमुख विचारे। डरदे हो ने जेड़े मनमुख ने, जिन्हां कोल विजडम नहीं है, जिन्हां कोल सतगुर यूनीवर्सल ट्रुथ ज्ञान नहीं है, वह डरदे ने। जिन्हों समझ आ जाए वह नहीं डरदा। बच्चा है ਉਹਦੇ वास्ते कुछ होर किस्म का डर है, ਵੱਡਾ है ਉਹਦੇ वास्ते स्कूल जाना इम्तिहान है, MA BA ਦੇ 12ਵੀਂ ਦੇ बोर्ड ਦੇ। होर ਵੱਡਾ है ਵਿਆਹ होना है डर है, होर ਵੱਡਾ है ਧੀ ਵਿਆਹਣੀ है डर है, होर ਵੱਡਾ है बिजनेस का डर है, होर ਵੱਡਾ है सेहत का डर है, मर ना जाइए। शरीर का इतना प्यार पै जाता है मनुख नूं कि मर ना जाइए। ऐसा योगा दे विच जाता है कि योगा ही करता रहता है, बिल्कुल हैल्थ फ्रीक ही हो जाता है, 24 घंटे योगा करता रहता है। और बई तू सेहत बनानी है तो बना के उस बाद की करना है। सेहत तो तेरी बढ़ रही है डे बाई डे, बट वट यू आर डूइंग योगा। 24 घंटे मैं योगा ही करता रहा तो योगा करके जी सेहत बनानी सी, बेनीफिट तो लिया ही नहीं, तू तो योगा का मुताज ही हो गया। मैं योगा मना नहीं कर रहा, अपनी सेहत को बरकरार रखना चाहिए, पर जाको आए सोई भी आजो वास्ते बरकरार रख, मन गुरमिल काज सवारे वास्ते बरकरार रख। खंडे बाटे की पौल छकनी है, छक अपना शरीरक सब कुछ बैलेंस रखना है, शरीर को ठीक रख, ते अपने अंतरात्मे बारे भी सोच, वो वास्ते तू आया। शरीर तो तेन मिले ही मिले, ओके ट्राई टू कीप इट बेटर। डर जाता है मनुख, इस डरे हुए मनुख नूं गुरु पातशाह कहते हैं तू डरदा रहना, तू अगे चल। हुण इसकी जेकर असी शब्द की अगली पंक्ति ते जाइए, अगले लफज ते जाइए, टर्म्स सारियां एक्सप्लेन करनियां पैणगियां तो असी एकदम छेती छेती शब्द नूं कर सकते हैं। तुम गावो मेरे निरभाव का सोहला। असी सोहला समझ लिया, निरभाव का सोहला समझ लिया, सोहला क्यों गाते ने समझ लिया, सोहला गुरु नानक पातशाह केड़े वाला दसदे ने वो समझ लिया, असी डर समझ लिया, डर तो निरभाव समझ लिया क्यों होना है। जेकर बच्ची भी कहे ना हाय हाय मैंने ये शादी नहीं करानी, जैसे मम्मी पापा आपको हर टाइम तंग करते रहते हैं ना, गाली निकालते रहते हैं, पाँव का जूती बनाते रहते हैं, हाय मेरा पति भी ऐसे करे मेरे, तो मम्मी कहती बेटा डर नहीं, चल चल कोई गल नहीं, डर नहीं, चल चल कोई गल नहीं, इत्थे भी बह नहीं रहना, असी माँ प्यो ने बैठ नहीं रहना, तू चल सुखी वसे रब करे। वो माँ उन्होंने अगे टोरदी है ना, उत्साह देंदी है ना, चल चल। ते गुरु पातशाह निडर कर रहे ने सानू, निडर हो जा, करा ला विआह, रब जी नाल जुड़ जा, मरण तो भी ना डर। सानू मरण का डर पिया रहिंदा है, छोटे तो लैके वड्डा सब तो वर्स्ट की है मरण का डर, हाय मरना चाहिए। जदों मनुख दे मन अंदर निक्के तो लैके वड्डे तक भावें कितने मर्जी उसकी परसेंटेज होवे, जदों डर बैठ जाता है मनुख डरिया होए नू पता है आम खाना है, डरे को डराएंगे हलवा पूड़ी खाएंगे, डरे को डराएंगे, डरे को डराएंगे बच्चे डरांदे ना, इंज विकार इस डरे नू डरांदे ने, ये विकारां दे वस पै जाता है। विकारां दे वस पिया मनुख रब जी नाल इकमिक नहीं हो सकता, विकारां दे वस पिया होया मनुख रब जी नाल विआह नहीं करा सकता, पर जिहड़ा विकारां नू काबू कर लवे वो रब जी नाल अब तो जाए चढ़े सिंघासन, मिल है सारंग पानी, ए सारे काम क्रोध लोभ ओंकार ओहदे नाल ने, पर वो हाइट ते चढ़ गया, रब जी नाल जाके जुड़ सकता है। ओ वाली अवस्था नू सदा सुख होए कहते ने, रहाउच कह रहे ने ऐ मेरे मन सोहला गाना है ते ऐसे वाला गा जिहड़ा निरभौका है, ताकि तैनू सदीवी सुख मिल जाए। तू मोमेंटरी प्लेजर्स ते लैंदा है, पर मोमेंटरी प्लेजर्स लैन तो बाद इन्नी तू 4-4 6-6 घंटे की ड्राइव करके एक जगह जाना है, फिर उत्थे तू स्विमिंग करके आना है, स्विमिंग के दौरान तेरा पसीना मुक गया सी, पर 6 घंटे का पसीना लैके गया, फिर उत्थे लाइनां च लगा रहा, फिर बच्चों नाल तू उत्थे घंटा स्विमिंग की, फिर स्विमिंग तो बाहर निकलिया, फिर 6 घंटे फिर पार्किंग, फिर ये करद्या करांद्या घर आया, घर जो पहुंचया स्विमिंग की ठंडक खत्म हो चुकी सी, पसीना फिर आ रहा सी। मोमेंटरी प्लेजर्स, आओ छुट्टियां दे दिन ने बीच ते चलिए, आओ मसूरी चलिए, आओ उधर चलिए, हाँ जा सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा,
पर ਇਹਦੇ ਚ ਸੁਖ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਸੁਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਸਦੀਵੀ ਸੁਖ ਲੱਭ ਲੈ, ਸਦੀਵੀ ਸੁਖ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਵਸਾਇਓ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਇਓ ਲੱਭ ਲੈ। ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਸੁਖ ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੂੰ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸੋਇਲਾ ਬਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ। ਤੂੰ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ 9ਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਾ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸਨੂੰ ਨਿਰਭਉ ਦਾ ਸੋਇਲਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਡਰ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ, ਕੰਗਾ ਲਾਇਆ, 5 ਕਕਾਰ ਪਾਏ, ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਾਲ ਛੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਇਲਾ ਸਿਰਫ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਪੜੀਦਾ। ਮਹੱਲੇ 9ਵੇਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਫ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਪੜੀਦਾ। ਡਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਮਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਇਲਾ ਜਾਂ 9ਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ, ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ, ਭੁਲੇਖੇ ਕਾਰਨ, ਡਰ ਕਾਰਨ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਸਤਸੰਗ ਹੋਇਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੇ ਪੜਿਆ ਸੋਇਲੇ ਦਾ, ਦਿਓ ਦਿਓ ਸੱਜਣ ਸੀਸੜੀਆਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਢੋਲਕੀ ਛਾਣੇ ਖਾ ਕੇ ਵਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਜਾ ਕੇ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ। ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਘਰ ਆਏ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਸੱਜਣ ਸੀਸੜੀਆਂ ਸੋਇਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜੋ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਮੈਂ ਟਿਊਨ ਸਿੱਖੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੋਇਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਸਕਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਿਰਭਉ ਕਾ ਸੋਇਲਾ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਨਿਡਰ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਡਰਪੋਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੈਸਾ ਵਹਿਮ ਪੈ ਗਿਆ? ਡਰ। ਨਿਰਭਉ ਕਾ ਸੋਇਲਾ ਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਾਏਗਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਕੋਈ ਰਹੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਹੋਂ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਸ ਸੋਇਲੇ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਤ ਸੋਇਲੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਸੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੈ ਘਰ ਕੀਰਤ ਆਖੀਐ। ਰੱਬ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਬਣ। ਸਤਨਾਮ ਹੈ, ਟਰੂਥ ਇਜ਼ ਹਿਜ਼ ਨੇਮ, ਤੂੰ ਟਰੂਥਫੁਲ ਲਿविंग बना। करता पुरख इज क्रिएटर, तू क्रिएटिव बन। तू उसारू काम करया कर, निकम्मे काम लेग पुलिंग वाले काम ना करया कर। वो निरभव है, तू निरभव बन जा। वो निर्वैर है, तू निर्वैर बन जा। एक कह रहे ने जय घर कीरत आखी है, सवाल नहीं है, कहते ने जय वाले जित वाले घर विच कीर्ति आखी जाती है। क्यों? क्योंकि उत्थे विकार काबू आ चुके होंदे ने। जिथे पहलवान लड़दा है अखाड़े विच और जदों जित जाता है उस अखाड़े दे विच ओह घूम रहा है पर वह जित गया, उहदे रिंग उत्ते उहनूं घुमाया जाता है। हो साईं दा पहलवानड़ा, मैं गुरमिल उच्च दुमालड़ा, सब होई छिंज इकट्ठियां। वो सारे शब्द की बनतर किसी वेले सैमीनार गुरथापी दित्ती कंड जियो, मैनू जीवन प्राप्त करा दिता। वो वाला जित दा घर, जय दा घर। जय घर कीरत आखिए, करते का होए विचारो। करते दियां विचारां होंदियां, वड्याई विचार होंदी है। तित घर गावो सोइला। मैं सोच रहा सी जय दे मीनिंग कर दिते ने भी जिस घर विच, सवाल बना लिया भी जिस घर विच कीर्ति आखी जाती है मेरे मन तू उधर जा, पर अगे कह रहे तित घर गावो सोइला। जय का मतलब अगे तित दे नाल जुड़दा नहीं है। तित का मतलब उस रियल जय वाले घर की गल चल रही है, सवाल नहीं है। जय वाले घर विच कीर्ति आखी जाती है, उस मीनस तित घर, उस घर विच तित घर गावो सोइला।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਿਲਾ ਗਾ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੜਿਆ ਰਹਿ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ। ਤਿਤ ਕਰ ਗਾਵੋ ਸੋਹਿਲਾ ਸਿਵਰਿਓ ਸਿਰਜਣਹਾਰੋ। ਸਿਵਰਿਓ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂ ਸਿਮਰੀ ਸਿਵਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਮਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਮਰਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਸਿਮਰੀ ਸਿਵਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਿਵਰਿਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਵੈਸਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਤਿਤ ਕਰ ਗਾਵੋ ਸੋਹਿਲਾ ਸਿਵਰਿਓ ਸਿਰਜਣਹਾਰੋ। ਤੁਮ ਗਾਵੋ ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਉ ਕਾ ਸੋਹਿਲਾ, ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਤ ਸੋਹਿਲਾ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਸੁਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਸਦੀਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੋ दैट यू कैन नेवर ओपन अकाउंट इन दिस बैंक। तेरे पास कुछ है ही नहीं है, बैंक अकाउंट खुलाने के लिए लाओ, क्या लाए हो? नहीं, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, मकान भी नहीं है, सोना जेवर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कैश भी नहीं है, गिरवी भी नहीं रख सकते, तुम यहाँ नहीं अकाउंट खुला सकते। क्यों जी? पिछले जन्मों के कर्मों के लिए। इस करके हर बंदा पहला ही डिसहार्टनड हो गया, पहला ही उन्हें उद्यम ही छोड़ दिता कि असीं ते रब जी नूं मिल ही नहीं सकते, असीं ते रब जी नूं प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले जन्मां दे कर्मां करके सानूं ये भुलेखा पा दिता गया। उस भुलेखे दे कारण की होया? उस भुलेखे दे कारण असीं पिछले जन्मां दे कर्मां दे डर दे कारण असीं उस गेम विच पै गए और डरे डरे असीं इस नूं सारा कॉर्नर करके मौत दे नाल जोड़ दिता। गुरु पातशाह शरीरक मौत की गल नहीं कर रहे, गुरु पातशाह अंदर जान दी इस एक आत्मक मौत की गल कर रहे, पॉजिटिव सेंस विच। इस ये जिहड़ी एक होंदी है आत्मक मौत, एक होंदी है जीवत मरना। यह हरमंदर साहब तो शब्द आ रहा सी, मैं सुन रहा सी, अखी बाजों वेखना विण कन्ना सुनना, पैरा बाजों चलना बिन हत्थां करना, जीभै बाजों बोलना इयों जीवत मरना। जे तैनू अंदर वालियां अखा हथ कन नक वाली गेम समझ आ जाए, तैनू जीवत मरना समझ आ जाएगा, वरना तू आत्मक मौत मरदा रहेगा। जीवत मरना सीख लै। जीवत मरना जे तेरा हो गया, तेरा रब जी नाल इत्थे ही अज ही हुणे ही मेल हो सकता है। जस्ट नाउ इसे वेले मेल करान नूं गुरु पातशाह कहंदे ने, रब दूर है नेड़ा है, दूर नहीं रे। सानू कह दिता मरण तो बाद रब जी मिलणगे। मैं जो शब्द पढ़ रहा सा सारा सोहिला और ये रिलेटिड स्कर्ट्स के अंदर जाके वो सारी स्लॉट देख रहा सा, तो गुरु पातशाह कहते ने ससुरै पईए पिर वसै। मैं हैरान रह गया। सानू कहते ने ये दुनिया पेका घर है, मरण तो बाद सोहरा घर होएगा, उस सोहरे घर दे विच जाके रब जी मिलणगे। गुरु पातशाह कहते ने इत्थे ही सोहरा पेका तेरा घर है, इत्थे ही रब जी वसदे ने, रब जी अज ही वसदे ने। आज मिलावा शेख फरीद है, ढाकम कुंजड़ियां तैनू करना, मनो मचंदड़ियां ठीक करनियां, तैनू रब जी अज ही मिल सकते हैं। जे गुरमत का सिद्धांत समझ आ जाए, रब जी दूर नहीं ने। काहे रे बन खोजन जाइए, असीं बड़े शब्दों में बार बार एक्सप्लेन किया। ਉਹਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ दूर समझना है, बाहर समझना है, बाहर भीतर एको जानो। जिस भगवान की बाहर की बातें कर रहा है ना, वो आसमान के ऊपर कहीं बैठा है, 7वें आसमान पे बैठा है, अमेरिका के नासा के ऊपर कहीं बैठा हुआ है, उस भगवान की बात कर रहा है ना। जो इस सारी सृष्टि में उस भगवान की बात कर रहा है, जो बलिहारी कुदरत से उसको भगवान की बात कर रहा है। अच्छा, जो ब्रह्मंडे सोई पिड्डे तेरे अंदर रहता है, कहीं मत जा। सो सिंपल इंट्रोस्पेक्शन, घर अंदर चला जा। जिस रब दियां बाहर गल्लां करदियां जे भुलेखा लथ जाए कि वो बाहर नहीं मेरे अंदर ही है,
या बाहर वाला ही मेरे अंदर है। जे ये गल समझ आ जाए, सारा डर तोखला दूर हो जाता है एकदम। देखो भाई, ज्ञान की आ जाती एकदम, एकदम सुनामी आ जाता, मैगा सुनामी आ जाता हिरदे विच, एकदम जीवत मरना समझ आ जाता है। वो जीवत मरना सानू आया नहीं, मरण वेले सोहला गाना शुरू कर दिता। हुण गुरु पातशाह इस शब्द दे विच अगे चल के कहते ने, निरभौ मन हो के जेकर तू गुरु दे भाणे विच आ जाए और उस अनुसार जीवें तां तू निरभौ हो सकदा और उहिओ तू हमेशा वास्ते सुखी हो सकदा है। पर तैनू अज होने वाला रब बस किसी तरीके नाल समझ आ जाए तां सारी खेड बन सकदी है। रब दूर नहीं है, किते परा नहीं है, तेरे कोल वसदा है, तेरे अंदर वसदा है। तू रियलाइज करना है। एक गुरमत की थ्योरी सारी दुनिया नालों अलग है, पर वो कहते ने सानू सारी दुनिया अते गुरमत के अनुवाद करने वाले कहते ने जी जदों मरांगे तो रब जी नाल मेल होएगा। मरण तो बाद जो 70 80 90 साल बाद जाके मरांगे तो मेल होएगा, ओनू मुक्ति कहते हैं। पर गुरमत कहती है मुए हुए जो मुकत दोगे, मुकत ना जानना है कोई ला। मरने के बाद मुक्ति मिलती है कि नहीं मिलती है कोई नहीं जानता है। मरने के बाद स्वर्ग है या नरक है, स्वर्ग बास न बाछिए, डरिए न नरक निवास, होना है सो होएगो, मन ना कीचे आस, मेरे को स्वर्ग नरक का कोई चक्कर नहीं है। दुनिया समझती है मरण तो बाद कोई किथे ऊपर सचखंड है, सचखंड हिरदे है, सचखंड वसन निरंकार है। ये मन हिरदा सचखंड है, ये मन ही बैकुंठ है, ये मन की अवस्था ही निर्वाण पद है, ये मन की अवस्था नूं ही समझना है। पर सानू कह दिता मरण तो बाद रब जी मिलणगे, इस करके अज ते नहीं मिलणगे। भुलेखे के कारण असीं टुट गए। उस भुलेखे के कारण फिर साडे अंदर रजा मनण दा वो नहीं रहा, असीं हमेशा वास्ते दुखी हो गए। इस डे बाई डे साडे अंदर मैल आंदी गई, उस मैल के कारण साडा आनंद खो गया। सानू दुखा ने घेर लिया, किन्हां ने? विकारां दे कारण जो साडे नाल मिस हैपनिंग्स डे टू डे लाइफ विच साडी सारी रिलेशनशिप्स विच होंदी है ना, यह साडे दुख बन गए। इन्हां दुखां दे कारण असीं जय वाले घर तो टुट गए। हुण कहंदे ने गुरु पातशाह अगे, नित नित जीड़े संभालियन देखेगा देवनहार, तेरे दाने कीमत ना पवै तिस दातै कवन शुमार। रब जी देंदा दे लैंदे थक पाए, इस सृष्टि का क्रिएटर है। वो क्रिएटर ने सब नूं बिना मंगिया सब कुछ देंदे ने। गुरमत विच मैटीरियल वर्ड मंगण की कोई नहीं। मैं एक आर्टिकल लिखता पाया भी दो किस्मां दे धर्म ने। एक धर्म सिखाता है त्यागो, फक्कड़, रिनाउंसिंग, जंगल में चले जाओ, सब कुछ झूठ है, धुएं का पहाड़ है, सब लोग बेकार हैं, सब झूठ है, सब कुछ त्याग के जंगल में चले जाओ, ब्याह नहीं कराना, ब्रह्मचारी रहना है, पत्ते खाने हैं और कुछ नहीं हंडाना। एक किस्म का धर्म। दूजे किस्म का धर्म सिखाता है हमारे धर्म को पूजोगे, हमारे धर्म के किसी उसको बड़े को मानोगे तो तुम स्वर्ग में जाओगे, उसको मानोगे तुमको प्लेजर्स मिलेंगे, उसको उसके ऊपर विश्वास रखोगे तो तुमको दुनियावी चीजें मिलेंगी, पुत्र मिलेगा, मकान मिलेगा, कार-बार मिलेगा, ज्वेलरी मिलेगी, सोनी वोटी मिलेगी। इसलिए हमारे उस धर्म दो किस्म के धर्म, पर गुरमत ऐसा कोई लालच नहीं देती है। गुरमत सच्चे जीवन का, अमल भरपूर जीवन का एक जीवन अखाड़ा सिखा के मनुख नूं उहदे विच खेडना सिखाण वास्ते माइटी माइटी इसनूं बनाती है, इसी आत्मा नूं ताकतवर करती है। दुनियावी चीज़ां मंगण वास्ते नहीं सिखाती है। पर मनुख ये समझदा है कि जदों मैं कुछ दान करदा, ये उस दान की कीमत पाना चाहता है। इसनूं नहीं पता जिहड़े रब जी बेअंत दातां दे रहे ने, तू दंद नहीं सी मंगे तैनूं दुध दे दिता, तू हड्डियां इस तरह नहीं सी मंगिया तैनूं हड्डियां दे दित्तियां, तैनूं अखां दे दित्तियां, तैनूं सब कुछ बिना मंगिया दे दिता, तू उहदी कीमत नहीं पा सकदा। तू ये विश्वास मन अंदर रख लै कि रब जी सारी क्रिएशन विच सबनूं सब कुछ दिंदे ने। गरीब बंदा समझदा है देखो अमीरां नूं दे दिता ना, सानूं नहीं दिता, ये रब जी नहीं करते ने, ये पाप पुण्य करके अमीर गरीब नहीं बने ने। जब आकार एक न दृष्टेता पाप पुण्य तब कहते होता। गुरु पातशाह ते असी 9 साल पहला पुस्तक लिखी सी लिविंग ट्रेजर के नाम हेठा, कौड़ा सच, उहदे विच लिखिया सी अमीर गरीब रब जी नहीं बनाते ने।
एक मनु लोग नहीं जी पानी जाए एक निहाली पै सवन एक उपर रहन खड़े एक आराम नाल सुते रहंदे ने एक उपर पखा करते रहंदे ने। ये अमीरी गरीबी मनुख दी बनाई हुई है, रब जी नहीं बनाते। रब जी सारे मनुख बराबर बनाते। रब जी दे घर विच अमीरी गरीबी नहीं है, हिरदे दी बादशाहत है, आत्मा दी कंगालता नहीं है उत्थे। रब जी अमीर गरीब नहीं बनाते ने, पर मनुख समझदा मैं बनांदा, मैं दान करदा, मैं प्राप्त करदा, इस तरह मैं ये करदा। तो गुरु पातशाह कहंदे ने तू समझ लै के रब जी सब कुछ करते ने। रब जी किसी नूं अमीर गरीब नहीं बनाते ने। ये सारी निज़ाम दी, सिस्टम दी और चोर उचक्का चौधरी दी बिजनेस दे विच गेम इस तरह है कि अमीर अमीर हो जाता है, गरीब गरीब हो जाता है। नित नित जीड़े संभालियन देखेगा देवनहार, वो देख रहा है, वो देखदा अपने सारे सिस्टम नूं चलांदा है। तेरे दाने कीमत ना पवे, तू अपने दाना की कीमत पाता रहता है। ये मीनिंग किए गए ने जे रब के दान की कीमत नहीं पै सकती। तो मैं सोचता रहा जे इत्थे तेरा लिखा है तो तिस दाते कवन शुमार ते थर्ड पर्सन हो गया तो तेरा फर्स्ट पर्सन है। तो क्योंकि शब्द का सारा कॉन्टैक्सट मन की गल चल रही है, मन को फर्स्ट पर्सन में मुखातिब किया जा रहा है। तो गुरु पातशाह मन को कह रहे हैं वो मेरे मन तू समझदा दान ना, तू आवें बस बहुता दान दे, तेरे दाने कीमत ना पवे, ओदी कीमत नहीं पै सकती। ते रब तिस दाता कवन शुमार, ओदियां बेअंत दाता ने, उन्होंने तू अंत नहीं पा सकता, बेशुमार दाता ने। इस करके ए मेरे मन तू निरभौ का सोइला समझण वास्ते गाण वास्ते आओ। इससे अज तक दी विचार नूं इत्थे संकोचदियां होइयां कल असीं अगे टुरांगे। इस नूं अगे संबत साहा तो लैके सेदियावन अते 6 घर 6 गुरु 6 उपदेश आप जी सारिਆਂ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਗਲਤ ਬੋਲ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ